हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी? वेल, हम करेंगे चैप्टर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.1 2020 के सिलेबस में नहीं है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो एक्सरसाइज 1.2 इट इज़ बेस्ड ऑन सम पॉइंट्स। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा HCF, तीसरा LCM, चौथा रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड नंबर्स, पांचवा कंपोजिट नंबर। ये टॉपिक है हमारे आज के। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम ये सारे टॉपिक करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मीन्स द नंबर्स which are converted into product of primes, like 140 number is there. So first of all it will be divided by 2 and we will get the result 70, then 2, then 35, 5 and last 7. यहाँ 7 से करने की जरूरत नहीं है. This 140 will be converted into 2 into 2 into 5 into 7. You can see here it is 2 into 2, that means 2 square into 5 into 7. ठीक है, और याद रखना प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक फॉर ए नंबर। मतलब यूनिक का मतलब ये है कि इफ़ इट इज़ containing 2 into 2 then into 5 into 5, it will contain only these 4 digits. Okay, there will be no other digit than these digits. ठीक है, apart from the order. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर? इफ यू हैव अ डाउट लाइक कैन वी अप्लाई 1 here, so let me tell you 1 is not a prime number, so we need not to write 1 in its multiplication. Okay, all the questions are of same style. Like taking in another question, here it is 5005. First of all it will go on 5, then it will result into 1001, then on 7 143, then 11 13. We get a prime factorization of this 5 into 7 to 11 to 13. Clear? It's a very easiest task to do. Now let's move to next concept, that is how to find HCF. HCF's full form is highest common factor, and in my terms I can say the highest number that can divide two or more numbers. I can also write here the common highest number. Okay,
This definition is itself a solution for every question. Let me take an example. Here we have 26 and 91. Okay, I'm not doing the second question because I'm talking right now on HCF. Now 26 can be written as 2 into 13 and 91 can be written as 7 into 13. Here 13 is the longest highest number that is common in both, will result into HCF will result into 13. This is the highest common factor. And what about this second method or second definition that is in my terms? So let me tell you how can we do by second method. 26 factors of 26 are, what are their factors? 1, 2, 13 and 26. These are the numbers that can divide 26. So these are the factors. Now moving to the second number, factors of 91. First is 1, second is 7, then 13 and 91. These are the four numbers. Now select which one is the highest and common between both. 1 is the smallest, so rejected. No 2 is there, no 7 is there, no 26 is there, no 91 is there. But 13 is the highest factor between both the terms which can divide both of these terms. So HCF is 13. Is that clear? Now we have to find out LCM. The meaning of LCM is least common multiple. Okay. In my term, I used to say the smallest number that is divisible by given numbers. मतलब वो छोटे से सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों या दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है. ठीक है जी. तो इसका तरीका क्या है कि आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. दूसरा स्टेप ऑल नंबर्स लिख लो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लोगे और एक एक बार लिख लोगे. जो बड़ी पावर होगी ना वो अप्लाई कर दोगे. जो सबसे बड़ी पावर होगी वो अप्लाई कर दोगे. जैसे मैं आपके सामने भी दो नंबर ले रहा हूँ और उन दो नंबर्स के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन करेंगे. एक नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पर 225 and 135. Clear? So first of all, do prime factorization of this. 3, 5, again 3, 25, 5 and 5. 135 पे 3, 4, 5, 3, 15, 3, 5. Clear? So we can write here prime factorization of 225 is 3 raised to 2 into 5 raised to 2. And prime factorization of 135 is 3 raised to 3 into 5. Why 3 raised to 3? 1, 2, 3. 3 raised to 3 into 5. So if we have to find out the LCM, then LCM will be 3 and 5. Only two types of number are there. 3 into 5. Now choose whose power is the largest. Like 3 raised to 3 is, यहाँ इन दोनों में बड़ी पावर 3 की क्या है 3 है और 5 की बड़ी पावर क्या है 2. दिस विल बी द एलसीएम. 27 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एलसीएम आ जाएगा. ठीक है जी.
HCF और LCM निकालना आ गया। हमारा अगला टॉपिक क्या है, देखो ज़रा। हमने आपको HCF प्राइम फैक्टराइजेशन करा दिया, HCF करा दिया, LCM करा दिया। अब हम करवाएंगे आपको रिलेशनशिप बिटवीन LCM, HCF एंड दी नंबर्स। और हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, एक रिलेशन है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, याद रखना ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ओनली ऑन टू नंबर्स। दो नंबर से ज़्यादा आ जाए तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती, एप्लीकेबल ही नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, वेरीफाई HCF into LCM is equal to product of two numbers. First question is 26 and 91. Do the prime factorization again. 2, 13, 91, 7, 13. Okay. 26 is equal to 2 into 13 and 91 is equal to 7 into 13. HCF will be 13 and LCM will be all numbers, यानी कि 2 into 7 into 13। ठीक है जी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 182। क्लियर। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF इज 13 इंटू LCM इज 182। इनका प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, ठीक है, 2366। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मीन्स product of two numbers, then two numbers are 26 and 91। इनका प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, ये भी 2366 आएगा, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, क्लियर है। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। द फर्स्ट नंबर वी आर गिवन 12, सेकेंड इज 15 एंड 21। 12 that is 2, 6, 2, 3, 15, 3, 5, 21, 3, 7। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 हो जाएगा 3 इंटू 7। HCF के लिए हम कॉमन टर्म्स देखेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बस 3। LCM के लिए सारे नंबर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। अब इनकी हाईएस्ट पावर देख लो। 2 की हाईएस्ट पावर 1 नहीं 2 है, इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की 1, 7 की 1, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 12 65 420 इज द आंसर। क्लियर। HCF और LCM दोनों निकल गए, उनकी रिलेशनशिप भी हो गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9. Find LCM. Very easy question it is. We know that HCF multiply LCM is equal to product of two numbers, that means A into B. HCF हमारे पास 9 है, LCM हमने सर्च करना है। A की वैल्यू 306, A यानी कि फर्स्ट नंबर, इंटू B 657। पहले 9 को इधर ले आओगे, डिवाइड हो जाएगा 306 इंटू 657 बाय 9, इसको कैंसिल करोगे और आंसर आ जाएगा हमारा 22338। बहुत आसान क्वेश्चन है।
इससे पहले कि मैं एक कंसेप्ट बताऊं, अगला क्वेश्चन कराओ। एक कंसेप्ट है, किसी भी नंबर की कितनी भी पावर हो, वो 0 से एंड तभी होगा जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी हो और 5, ये दोनों हो। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी वो 0 से एंड होगा। इसी बेस पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है चेक वेदर 6 की n कैन एंड विद 0 और नॉट। ठीक है, तो अब आप देखो 6 की n क्या होगा। पहले 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 3 की पावर n आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कंटेन्स 2 and 3 ओनली, है ना। 6 की n में एंड with 0 if 5 must be in, देखो 2 तो ऑलरेडी है ना, इसलिए ब्रैक इसकी कमी रहेगी 5 की। 5 मस्ट बी इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन which is not present, so there is not natural number n for which 6 raised to n ends with the 0। ठीक है जी, दिस इज द 5th क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई, 2 क्वेश्चन दे रखे हमें। 7 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट नंबर। एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, एक आप अपने आप कर लेना भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके सामने आया कि प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, या हम कह सकते हैं कि जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में बदल सकें, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में बदल सकें, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे अब 2 है, अगर कोई कहे कि 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 का तो सिर्फ 2 है, 2 × 1 नहीं होता क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए जैसे 13 है, वो तो सिर्फ 2 ही आएगा और 13 ही आएगा, तो इसका तो कोई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता ही नहीं। जिसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होएगा सिर्फ वही कंपोजिट नंबर होगा। तो इसके लिए अपन ट्राई करते हैं, क्या होगा। 7 × 11 × 13 + 13, 13 दोनों में कॉमन है, ले लेते हैं। 7 × 11 + 1, 13 × 78, और 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2, 39, 3, 13, 13 × 78 के लिए लिखोगे 2 × 3 × 13। हाँ जी, सिंस इट कैन बी expressed as product of primes, so it is composite number। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन में आप एलसीएम निकाल लोगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, जिसमें आपको सर्कुलर पाथ में दे रखा है। वैसे मैं आपको एक छोटा सा रट्टा बता देता हूँ कि एक सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ मूव करती है और बाद में कहा जाए कि वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, कब जाके मिलेंगी, तो उसके लिए हम उसका एलसीएम निकालते हैं। या एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक जगह पर
एक घंटी बजती है 1 घंटे बाद, दूसरी बजती है 2 घंटे बाद, तीसरी बजती है 3 घंटे बाद, चौथी बजती है 4 घंटे बाद, पाँचवीं बजती है 5 घंटे बाद। तो ये इकट्ठी कब बजेंगी? जैसे मान लो 9 बजे घंटी बजनी शुरू हुई, 9 बजे एक घंटी बजेगी, ठीक है। ये बेल 1, बेल 2, बेल 3, बेल 4 और ये बेल 5। बात समझने की है, ध्यान से समझना। ये 1 घंटे बाद बजी, जैसे 10 बजी तो ये घंटी तो हर घंटे बज रही है, ये भी बज जाएगी, ठीक है। जैसे 11 बजेगी तो पहली घंटी तो बजेगी, दूसरी नहीं बजेगी, तीसरी बज जाएगी, ठीक है ना। फिर जैसे 12 बजी, 12 बजे क्या होगा? पहली बजेगी, दूसरी बजेगी क्योंकि ये 2 घंटे बाद बज रही है ना, और फिर ये नहीं बजेगी, ये बज जाएगी चौथे घंटे पे। ऐसे ये पाँचों घंटियाँ, जैसे अब इसमें तीन घंटियाँ इकट्ठी बज रही हैं, तो ऐसे पाँचों घंटियाँ कब बजेंगी इकट्ठी? तो इसके लिए आप इनका एलसीएम लगा लोगे, ठीक है ना। एक एलसीएम का ये भी तरीका होता है जो बचपन में सीखा होता है। एक 2 से करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5। फिर 2 से करोगे 1 1 3 1 5। फिर 3 से करोगे 1 1 1 1 5। फिर 5 से करोगे 1 1 1 1 और 1। इनका प्रोडक्ट करोगे 2 2 जा 4, 4 दिए 12, 5 60। 60 घंटों के बाद, 70 आवर्स के बाद, ठीक है जी। है ना मज़ेदार चीज़। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।